Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 8. The chapter which we are related with is consignment account. कल भी हमने ये किया कि we have gone and saw the requirement of the question. Similarly, we will be doing the same job today. Just read this line. Show these transaction and show these transaction in the necessary ledgers of both parties. Both parties means you have to create consigner and consignee both books. So be ready. Although question is very short, but due to the reason these entries would be posted in two books, so it will take a little bit time. So be ready. So let's start our question. On 1st March, Cream consigned cloths to Afzal. So first thing first, we come to know that Kareem is our consigner. So we will be noting it down. And secondly, the person who is consignee is Afzal. So let's note Afzal. And this person is our consignee. Name we have mentioned is Afzal. पहला काम हो गया. Now let's see what next is. Kareem consigned the value of 6,50,000 at cost. पहली एंट्री हमें मिल गई है and that is for goods sent. और हम क्या करेंगे? Consignment and to goods sent on consignment. So first entry has been completed, and have you noted it down? There are no number of units which has been described. Total cost is given. तो आज हम किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट 6,50,000 post over here and same value you will be posting over here. So guys, in this way our first entry has been completed. Let's see what next is. His agent in Multan who accepted 3 months draft. ये एडवांस की एंट्री है और आप यूं समझ लें कि एडवांस इन टर्म्स ऑफ बिल, बस ड्राफ्ट हमने उससे एक्सेप्ट करवाया है. ये अकाउंट रिसीवेबल है. दैट मींस फॉर कंसाइनर amount is receivable in the future, one thing, and this is the promise who is accepted by consignee. तो कंसाइनर ने एक बैंक ड्राफ्ट एडवांस की सूरत में उससे रिसीव करवाया है, लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हु एक्सेप्टेड. उसने सिर्फ अभी एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब मिला नहीं है. ये एक बिल है जो रिसीवेबल है किससे? कंसाइनी से. और कंसाइनी को हम जान गए हैं. द नेम ऑफ कंसाइनी एक दफा फिर पढ़ लेते हैं. अफजल इज आर कंसाइनी, तो इसको यहां पर भी लिख लेते हैं. और कितने का बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया? 7,80,000. सो क्वाइट स्ट्रेंज, जितने का माल भेजा है उससे ज्यादा की कीमत उससे वसूल कर ली गई है. तो समटाइम ट्रस्ट इश्यूज विल कंपेल यू to do such sort of things. उससे amount of goods sent or the cost of goods sent was just 6,50,000 and we have drawn a bill of 7,80,000 upon consignment. ज्यादा पैसों का बिल हमने उस पर ड्रॉ कर दिया. करीम पेड. करीम कौन है? कंसाइनर. सो अगली एंट्री हमें मिल गई है and that is expenses of कंसाइनर. और एंट्री क्या करेंगे? उसके लिए हम कुछ वर्ड्स उधार ले लेते हैं. कंसाइनमेंट टू कैश, क्योंकि उसी टाइम पेमेंट हो रही है. हाउ मच? 35, 65. ओके, देर आर टू अमाउंट्स. फर्स्ट इज 35 एंड देन 6,500. एक दफा फिर चेक करें. 35,000 और 6,500. These were expenses of consigner, वो भी आपने पे कर दिए. कंसाइनमेंट टू कैश हो.
आगे चलते हैं। अफजल एंड सन नोटिफाइड करीम बख्श दैट 80% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड। ये सेल की एंट्री है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है 80%। सेल कर दी 8,25,000 की। हम एंट्रीज को क्वेश्चन की तरतीब से कर रहे हैं। सो यहां पर आप ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लिखकर पहले आप कंसाइनी एंड द पर्सन इज अफजल, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट करना है। ऑलराइट, अब चेक करें कितने की चीज उसने बेच डाली है, 8,24,000। यहां पे भी यू डू नॉट नीड टू मल्टीप्लाई यूनिट्स and per unit, direct amount is available. Look at here, 824,000. So just post this amount directly over here. मगर याद रखिएगा कि 80% goods have been sold out. And selling expenses, when you will use your common sense, sale is the responsibility of consignee. So selling expenses are expenses of consignee. वो आप यहाँ पर mention कर दें। मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ एक्सेल से, मुझे लिखना कम पड़ेगा। सो हेयर कंसाइनीज एक्सपेंसेस, और यहाँ पर भी दोबारा कंसाइनमेंट टू कंसाइनी हमने करना है। ले जी, इस तरह से एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी की जनरल एंट्री भी कंप्लीट हुई। अब सिर्फ इसकी अमाउंट पोस्ट करनी है, कर लेते हैं। हाउ मच अमाउंट? 12,100. So 12,100 on debit side and same amount we will be posting on credit side. Alright guys, entitled a commission of 10%. So next entry, again we have commission, और उसकी एंट्री के लिए we do not need to write anything else. Same entry expenses and same entry of commission. अच्छा जी, कितनी कमीशन है? 10% ऑन सेल्स। हम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए सेल की अमाउंट है 8,24,000 and you need to calculate what percentage? 10%. So simply here 10 divided by 100, you will be able to calculate your commission. So what you have done, 8,24,000 is total amount of sales and 10% is rate of commission. So in this way 82,400 is your commission. क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब आपको मैं क्यों कह रहा था why it is 80% important, because 100% material has not been sold. So 80% sold, common sense use your common sense, 20% is unsold stock. अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक को, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कि 80% बिक गया है, तो 20% ऑफ स्टॉक इज अनसोल्ड। टोटल इनवाइस प्राइस देखें, दैट वाज 6,50,000। तो वही अमाउंट आप पुट करें 6,50,000, और बकाया कितना है? दैट वुड बी 20%. So if 80% is sold, remaining stock is 20%. So 6,50,000 multiply by 20 divided by 100. अब expenses of consignor में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। This is expenses of consignor 41500 and this would be charged only 20%. So let's calculate 41500 multiply by 20 divided by 100. So we have got यहाँ how much amount? 8300 कैलकुलेट हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड इट, ये हमने क्या लिखा होता है? अनसोल्ड ओवर टोटल। इफ आउट ऑफ 100 80 आर सोल्ड, 20 would be unsold and total units we have considered 100. तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है? 80% is sold, remaining 20% is unsold. स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया, so we need to put its entry. यहां पर स्टॉक ऑन
consignment. So just put stock on consignment to consignment account. And how much stock, वो भी आपने कैलकुलेट किया है. Look at here, 180, 138, 300. That would be amount of stock. 138, 300. स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया. अब लास्ट में आपने वो गुड्स कॉस्ट की एंट्री करनी है. वो अगर पहले पहले नहीं करेंगे वो आपको भूल जाएगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स, एंड फॉर दैट goods sent on consignment to trading account. और उसके लिए वैल्यू वही लेनी है जो सबसे पहली एंट्री की है. दैट मीन्स 6,50,000 ही आप यहाँ पुट करेंगे और सेम अमाउंट यू आर गोइंग टू पुट ओवर हियर. अब लास्ट आपका काम रह गया है कि आपने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है, लेकिन याद रखिएगा दूसरी बुक्स भी बनानी है. सो 6,50,000 प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड और इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वही इसका रेफरेंस बन जाएगा. फर्स्ट एंट्री वुड बी कंप्लीटेड इन दिस वे. सेकंड में देखें कंसाइनमेंट नहीं है, छोड़ दें. नेक्स्ट कंसाइनमेंट यस प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड. सो वी विल गो टू डेबिट साइड 41500 और इसके रेफरेंस के लिए टू कैश इज रिटर्न. Second entry is completed. Now third entry consignment yes present on credit side. आप इधर आए और 8,24,000 credit side पे और इसकी opposite side पे we have got consignee. उसी को यहाँ पे post कर दें but with an additional word of buy. So sale की entry भी complete हो गई. Next चलें, consignment is present on debit side. So 12,100 and what is written on the opposite side, that is consignee. So वो आप यहाँ पोस्ट कर दें. इस तरह से our fourth entry has been completed. 12,100. next entry में देखें consignment yes again present on debit side. चेक कीजिए 82,400 consignment is debit, वो पुट कर दें और opposite side पे we have consignee, वही आप यहाँ पुट कर दें. 82 वाली एंट्री भी कंप्लीट. नेक्स्ट कंसाइनमेंट इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड. सो यू विल कम ओवर हियर एंड 1,38,300 इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड. ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. दैट वुड बी योर रेफरेंस. सो आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स में विद एन एडिशनल वर्ड ऑफ बाय. Alright, all entries are completed. It means we are ready to start our calculation of balance. First step to take sum of debit side and same sum you will be calculating on credit side. यहाँ नजर आ रहा है कि credit side is larger than debit side, तो बैलेंस इधर निकलेगा. स्मॉलर साइड पे बैलेंस निकालते हैं and this balance is actually profit on consignment. और कैसे निकालेंगे? larger amount then subtract smaller amount which is 786,000. ले जी आपका बैलेंस भी आ गया और यहाँ चेक करें. प्रॉफिट इज 176,300 एंड वी हैव कैलकुलेटेड 176,300. ओके, और फिर आपकी जो लास्ट एंट्री थी प्रॉफिट की वो भी आप साथ में कर दें एंड यू विल बी डेबिटिंग कंसाइनमेंट, वही आप इधर पोस्ट करेंगे एंड देन टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. and how much profit? We have just calculated 1,76,300 and same would be written on both sides 176,300. So guys, in this way
वन बुक हैज बीन कंप्लीटेड। अब आपको चार एंट्रीज वो याद है जिन एंट्रीज को आपने कंसाइनी की बुक में लेके जाना है। सो यहाँ पर आप एक लेजर, क्योंकि उसने कहा है कि नेसेसरी लेजर्स बनाएं, सो नेसेसरी लेजर कंसाइनमेंट और कंसाइनी होगा। चार एंट्रीज विच आर क्लोजली एसोसिएटेड consignee, closely associated with consignee, we will be picking those entries। जहां जहां consignee आ रहा है उनको सिर्फ एंट्रीज को पिक करेंगे। फर्स्ट एंट्री consignee is not present, second entry yes on credit side, and how much amount, that is 7,80,000, आप वो पुट करें। और ऑपोजिट साइड पर what we have got, that is bill receivable, उसको आप particulars में पोस्ट कर दें with an additional word of buy। First entry is completed। Now look at next entry, consignment to cash, consignee is not present, leave it। Next consignee is present on debit side, or 8,24,000 is present over here। On the opposite side consignment is written, so just give its reference। So 8,24,000 completed। Next consignee again present 12,100, किधर, क्रेडिट साइड पे मौजूद है। एंड फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड कंसाइनमेंट इज प्रेजेंट, वो आप यहाँ पोस्ट कर दें with an additional word of buy। 12,100 completed। Again consignee is present on credit side 82,400, and then for reference you can see consignment is present, so same consignment would be written over here। 82,400 completed। Next consignee is not present, leave it out। Next consignee is not present, leave it out। So बस इतनी एंट्रीज थी। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट बैलेंस। सो यहाँ पर दोनों साइड का आप पहले टोटल करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास पैसे क्रेडिट साइड की तरफ ज्यादा आ गए हैं। दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड स्ट्रेंज फॉर यू। जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने में ही आपको बता दिया था, कॉस्ट वाज जस्ट 6,50,000 while a draft was received for 7,80,000। सो 8,20,000 24,000 में से पहले ही हमने उससे 7,80,000 रिसीव कर लिए हुए थे। एंड देन यू विल सी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी एंड कमीशन वो ज्यादा बन गई। अब बजाय इसके कि कंसाइनी से पैसे लें, कंसाइनी को पैसे देने पड़ेंगे, और वो कितने, लुक एट हियर, इस साइड पे आएंगे and here you can see larger amount is 874, and then you will subtract smaller amount which is 824,000। ओके, तो अब आपको ये पता चल रहा है, देखें 50,500 that would be paid to consignee। उल्टा हिसाब हो गया, चूंकि हमने एडवांस में बहुत ज्यादा पैसे उससे ले लिए थे, अब पैसे उसके ज्यादा बने, तो आप यहाँ पर बजाय इसके कि कंसाइनी को पैसे दें, बजाय इसके कि कंसाइनी से पैसे लें, उल्टा आप कंसाइनी को पैसे दे रहे हैं। अच्छा, अब आप प्लीज ध्यान रखिएगा, दीज 4 एंट्रीज हमें जुबानी याद है। वो एक तो सेल की एंट्री है, दूसरा कमीशन की एंट्री है, तीसरा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी की एंट्री है, और लास्ट में जो ड्राफ्ट आपने लिया हुआ उससे एडवांस की सूरत में। ये 4 एंट्रीज हैं जिनको आना ही आना होता है। अब आप ये देखिए कि सेल की एंट्री में जब आप ऊपर जाएंगे, वैसे तो मुझे खुद ही डायरेक्ट कर देनी चाहिए, यहां पर कंसाइनी इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, सो यू विल गो टू क्रेडिट साइड और ऑपोजिट करके कंसाइनर का नाम लिखेंगे और कैश वुड बी रिसीव्ड। अब कमीशन जो है दैट वुड बी इनकम, सो टू कमीशन, एंड यू विल रिसीव, consignee will receive this commission from consigner, so consigner to commission। and thirdly, expenses of consignee में cash will go out and these expenses would be taken by
टेकन फ्रॉम कंसाइनर। एक दफा चेक करा देता हूं आपको। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी में जाएं, यहां देखिए कंसाइनी इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड, तो आप ऑपोजिट डेबिट साइड पर जाएंगे। लुक एट हियर, डेबिट साइड पे नाम पलटा के कंसाइनर लिख दिया। लास्ट वाज ड्राफ्ट, ऊपर हमने उस ड्राफ्ट को डिस्कस किया, इट वाज बिल रिसीवेबल, बट फॉर कंसाइनी it would be payable, so here bills payable आएगा। सॉरी, एंड कंसाइनर would be the person। ये भी एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई। अमाउंट पोस्ट कर देते हैं। सेल की अमाउंट थी 8,24,000, जस्ट पुट इट 8,24,000 on debit side and same amount on credit side. Commission was calculated and it was 82,400, 82,400 and same amount on credit side. Next, the expenses of consignee. Look at here, consignee's expenses 12,100. So put it on both sides. लास्ट जो ड्राफ्ट था दैट वाज 780,000, ये मुझे थोड़ा जुबानी याद है, चेक भी कर लेते हैं। सो इट वाज 7,80,000। सो इन दिस वे एंट्रीज आर कंप्लीटेड। अब आपने कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का लेजर बनाना है, और आपको याद है वी हैव डिस्कस्ड ऑल 3 एंट्रीज वुड कम ऑन डेबिट साइड एंड 1 एंट्री विल गो टू क्रेडिट साइड। ये रट्टे वाली चीज भी हमने सामने रखी हुई है। बहरहाल हम एंट्रीज को ऐसे देखते हैं। सो कंसाइनर इन फर्स्ट एंट्री प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड, सो यू विल गो टू क्रेडिट साइड 8,24,000 and opposite side cash is written. Write down first entry completed. Next, consigner is present on debit side 82,400 and for reference we have got commission, वही आप यहाँ पोस्ट कर दें। So 2 entries are completed. Next, consigner again present on debit side 12,100 and for reference to cash is written. Last entry, consigner is present on debit side, how much? 7,80,000 and for reference what is written? Bill payable, वो आप यहाँ लिख दें। So guys, same situation we have discussed. Look at here, only one entry of 824 was present in consignee account, and in consigner account opposite side 824 is present. ऐसे ही आप इनका बैलेंस कैलकुलेट कर लें। सिमिलरली बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स। अब बैलेंस आपका स्मॉलर साइड इधर है और आप कैश मंगवाएंगे कंसाइनी से। कैसे? लार्जर अमाउंट वाज 874, स्मॉलर अमाउंट इज 824,000, सो वी हैव गॉट 50,500। चेक करें, ऊपर कंसाइनी के अकाउंट में भी 50,500। ये सिर्फ डुप्लीकेट है, बस ऑपोजिट साइड पे चले जाना, इधर वाली एंट्रीज इधर और इधर वाली एंट्रीज को इधर कर देना। सो इन दिस वे our question has been completed. We have established both books of consignee, and in books of consignee consignor's ledger was made. Then at first step books of consignor was made and consignee account was established. In this way our question is completed. I am humbly requesting, आपसे बहुत ज्यादा humble request है, प्लीज खुद करें क्वेश्चन को, कहीं से चीटिंग नहीं करें। क्वेश्चन आपने यहाँ से देख लिया ना, अब खुद करें बैठ के। जो एंट्री भी आपसे कुछ गलत होती है आप फिर दोबारा इसका रेफरेंस देख लें, लेकिन प्लीज खुद अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड इवन इफ यू फील एनीथिंग डिफिकल्ट, आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर प्रॉब्लम and will try my best to answer your question quickly. Thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.